अस्सलाम वालेकुम. See on page number 27, 1.3. The name of the topic is the Pope and the Anthem. This is our third topic from Standard 12. The name of the topic is the Pope and the Anthem on page number 27. We will read first on page number 28. The name of the topic is the Pope and the Anthem. O. Henry, 1862 to 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name. Pen name, nickname जिसको बोलेंगे, O. Henry. He was a voracious reader since childhood. He started a humorously weekly, The Rolling Stone, and when the venture failed, he joined the Houston Post as a reporter, columnist, and occasional cartoonist. The story. The name of the story is given on page number 28. The Pope and the Anthem is one of O. Henry's well-known stories है ये. To describe his style of writing, in this topic, the writer describes his style of writing. People have often used to them smile with tears, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. In this story, the main character is Sophie. पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एक सोफी, एक द नेम ऑफ ए मैन, एक आदमी का नाम है जो ही इज अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है. इज अ vagabond and a personal with criminal background. क्रिमिनल गुनाहगार इसको बोलेंगे. He makes different places to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. The story ends in an unexpected way. O. Henry has depicted Sophie's futile attempts to get arrested in a very humorous vein. The Pope and the Anthem is about freedom and confinement. Initially, Sophie feels that there is freedom. The notes of Anthem transfer him from within and he resolves to work hard. Sophie faces the irony of fate as the moment he realizes the real freedom lies in a virtuous life, he is taken into confinement. This is about the writer. Writer के बारे में दिया हुआ है. And the main character of this story is, पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो सोफी का है. See, starting from line number first on page number 28. The autobiographical element of Sophie, the main character of Sophie, is described by the writer. राइटर ने पेज नंबर 28 पे जो स्टार्टिंग की स्टोरी है उसके अंदर जो सोफी का जो मेन कैरेक्टर है और द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ सोफी इज डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर. द कोप के मीनिंग है यहाँ पर अ पुलिसमैन. हियर इन द फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ द डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ सोफी इज डिस्क्राइब्ड. सोफी का कैरेक्टर बयान किया है. ही इज अनएम्प्लॉयड मैन है, बेरोजगार है. और ऑन द अदर हैंड वेन एवर अ विंटर कैंप, जो ही सर्दी का मौसम आता है, तो हियर ही इज इन ए पोजिशन टू डू अ क्राइम. हर जगह किसी न किसी रेस्टोरेंट में जाता है, वो खाने के बाद में पैसे वगैरह का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं दे पाता है
और उसका मकसद ही है कि द पुलिस वुड अरेस्ट हिम, पुलिस उसको अरेस्ट करे और जेल के अंदर, प्राइजन के अंदर जाके बड़ी सुकून से रहना चाहता है, बिकॉज ही हैज विदाउट शेल्टर, सहारे की जरूरत है उसको, रूम वगैरह नहीं है, मकान वगैरह नहीं है। तो हियर द कैरेक्टर ऑफ सोफी, आपको पहले बता दूं, सोफी वॉज क्लीन शेवन विदाउट ब्रीड, बिना दाढ़ी के, क्लीन शेवन। हिज कोट वॉज ट्रीम, उसका जो कोट है वो ट्रीम है, कई जगह से फटा हुआ है। हिज ब्लैक बो वॉज नीट, he looked confident, on the other hand he himself had confident, अपने आप में confident है, खुद एतमादी है। he did not look like a gentleman. Sophie's ambition is, उसका ambition है, मकसद है, to go to jail, जेल जाना, was not strange, कोई उसके लिए कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। whenever the winter came, कभी मौसम जिस तरीके से चेंज होता है, विंटर अगर आया है, सर्दी का मौसम अगर आया है तो उसको रहने का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ही इज इन ए पोजिशन टू क्राइम, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाके क्राइम करता है, गुनाह करता है। उसका मकसद ये है कि सर्दी के अंदर, ज्यादा धूप के अंदर, बारिश के अंदर किसी भी तरीके से वो प्राइजन के अंदर, जेल के अंदर जाके रहे, इसलिए ही कमिटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीन, गुना करता है। ही वॉज एन अनएम्प्लॉयड यूथ, जवान आदमी है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार जिसको बोलेंगे। ही थॉट दैट ही कुड लिव इन अ जेल कंफर्टेबली, वो सोचता है, समझता है कि ही कैन लिव इन अ जेल, जेल के अंदर बड़े कंफर्टेबली, इत्मीनान से वो जिंदगी को गुजार सकता है। द फर्स्ट पैराग्राफ इज Sophie left his bench and strolled out. Here he is sitting on the bench. बेंच के ऊपर बैठा हुआ है किसी ओपन जगह पर, खुली स्पेस में। Sophie left his bench and strolled out. Strolled out की मीनिंग होते हैं, बाजू में दिया हुआ है, walked in a leisurely way, थोड़ा मायूसी के तरीके से चलना, या leisurely थका हुआ है जिसको बोलेंगे। Strolled out of the square and across the level sea of asphalt, where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Here, after some moment, he stopped नियर अ लग्जरियस केफ, एक छोटी सी कॉस्टली होटल, जो अच्छी होटल बनी हुई है और कॉस्टली है, महंगी होटल है, उसके सामने जाके खड़ा होता है। अप ब्रॉडवे ही टर्न एंड स्टॉप एट ए लग्जरियस केफ। सोफी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। हियर ऑन द अदर हैंड वी विल से दैट ही हैड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, अपने आप में उसको खुद एतमादी है, भरोसा है। From the lowest button of his waist upward, he was shaven. शेवन में थोड़ा सा सर्दी की वजह से कांप रहा है। And his coat was steamed. On the other hand, the different character of Sophie is described by the writer. राइटर ने सोफी के मुख्तलिफ कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया है। He was shaven and his coat was steamed. Steam is फटा हुआ है। And his neat black bow had been presented to him by a lady missionaries on Thanksgiving Day. Thanksgiving Day की बाजू में मीनिंग उसके दिया हुआ है, the fourth Thursday of November, marked by religious observance and traditional meals. If only he could reach a table in the restaurant, unsuspected success would be his. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. A roasted mallard dusk, though Sophie would be about the thing with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. And he entered in a restaurant, एक रेस्टोरेंट के अंदर इंटर्ड होता है। A roasted mallard, though Sophie would be about the thing
with a bottle of wine and then some cheese, a cup of coffee and a cigar. कुछ नाश्ता करता है, सिगार वगैरह पीता है, सिगरेट वगैरह, and a cup of coffee. $1 for the cigar would be enough. The total would not be so high as to call forth any extreme of revenge from the safe management, and yet the meat would leave him filled and happy for the journey to his winter's island. To his winter's island वहाँ दिया हुआ है. Here winter's island means cold season, सर्दी का मौसम. But as Sophie said, food inside the restaurant door, the head waiters I fell upon. रेस्टोरेंट के मीनिंग है कोई होटल जहाँ पे खाने और वाइन वगैरह का इंतजाम है, शराब वगैरह का. But as Sophie said, food inside the restaurant door, the head waiters I fell upon की मीनिंग है means notice by chance. He tattered his tattered trousers, tatters means या फटे हुए, trousers बोले तो कपड़े वगैरह, and decadent के मीनिंग है यहाँ पर here old and worn out shoes, फटे हुए shoes वगैरह, जूते वगैरह. Strong and ready hands turned him about and covered him in silence and hurried to the sidewalk and averted the ignoble means dishonorable fate of the maniac mallard. Maniac की meaning वहाँ पे in danger. And here the first paragraph it indicate that Sophie entered in a restaurant. एक रेस्टोरेंट के अंदर इंटर्ड होता है, वह जो नाश्ता वगैरह करता है, कुछ खाता है, चाय वगैरह कॉफी वगैरह लेता है, और उसके बाद में he had no money to pay, उसके पास रुपये पैसा नहीं है पे करने के लिए. On the other hand, the character of his, उसका कैरेक्टर, उसका हुलिया से देखकर ऐसा लगता है कि कोई उसको अरेंज भी नहीं कर सकेगा उसका हुलिया देखकर. Here the different words are given in this first paragraph. पहले पैराग्राफ के अंदर different words दिया हुआ है. For example, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वोकेबलरी के अंदर, find out from the extract the opposite of the following. अपोजिट अगर पूछता है इसके अंदर, डिफिकल्ट है, इसमें डिफिकल्ट का अपोजिट दिया हुआ है, इसमें इजी आएगा. सेकंड वर्ड हाईएस्ट दिया हुआ है, हाईएस्ट का अपोजिट आएगा लोवेस्ट. बाजू में पेन वगैरह रख के लिखते भी चलो किताब के ऊपर. उसमें डिफीट वर्ड दिया हुआ है, डिफीट का अपोजिट डिफीटिश है. और आउटसाइड दिया हुआ है, आउटसाइड का अपोजिट आएगा इनसाइड. ये वोकेबलरी के बारे में क्वेश्चन दिया. अगर वोकेबलरी का टाइप का क्वेश्चन आता है, वोकेबलरी में अगर पूछा जाता है क्या फाइंड आउट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द एनाटॉमी एंड टर्म्स और द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. तो डिफिकल्ट का अपोजिट है इजी, हाईएस्ट का अपोजिट है लोवेस्ट, डिफीट का अपोजिट है डिफीट, और आउटसाइड का अपोजिट है इनसाइड. See on page number 29, second paragraph. Sophie turned off Broadway. It seemed that his route to the coveted के मीनिंग बाजू में दिया हुआ है, greatly desired. पेज नंबर 29 का सेकंड पैराग्राफ. coveted, greatly desired, ख्वाहिश जिसको बोलेंगे. Island was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. Limbo के भी मीनिंग की बाजू में दिया हुआ है, border place between heaven and hell. Here on page number 29, he again entered in another restaurant.
द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, सेकंड रेस्टोरेंट का नाम दिया है 6th एवेन्यू, एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू। यानी हियर सोफी, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी सोफी, ही इंटर्ड इन अनदर रेस्टोरेंट, दूसरे एक रेस्टोरेंट के अंदर इंटर्ड होता है, पेज नंबर 29। द रेस्टोरेंट वॉज एन ऑर्डिनरी वन, दिस सेकंड रेस्टोरेंट जो है खाने पीने की जो जगह है, जो होटल्स है, वो इट इज एन ऑर्डिनरी वन है। देयर ही एंजॉयड फूड, यहाँ जाने के बाद में एंजॉयड करता है फूड वगैरह, पिज्जा वगैरह खाना खाता है। एंड टोल्ड द वेटर, और इसकी स्टोरी बतला रहा हूं मैं बाजू में, जो पेज नंबर 29 की है। तो हियर ही अगेन इंटर्ड, दूसरी रेस्टोरेंट के अंदर इंटर्ड होता है। द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज 7th एवेन्यू। He entered in another restaurant. The restaurant was an ordinary one. There he enjoyed food and told the waiter that he had no money to pay the bill. He also asked the waiter to call to the police. वो खुद चाहता है कि वेटर से बात करता है, कि वेटर से कहता है, दुकान में जो काम करने वाला है उससे कहता है, वेटर से कहता है, टू कॉल द पुलिस बिकॉज आई हैड नो मनी टू पे आफ्टर ईटिंग। खाना पीना खाने के बाद में उसके पास कोई मनी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली displayed wares behind plate glass made a shop window attractive. Sophie took a stone and dashed it through the glass. And here he entered in a restaurant. There he ate. And after some time, here Sophie took a stone. अपने हाथ में पत्थर लेता है, उठाता है, and dashed, और वो रेस्टोरेंट के कांच वगैरह को फोड़ता है, एंड डैश इट थ्रू द ग्लास। पीपुल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, थोड़ी देर में वहां पे लोग जमा हो जाते हैं रेस्टोरेंट के बाजू में। पीपुल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, अ पुलिसमैन इन द लीड, पुलिसमैन भी आता है इन अ लीड की मीनिंग है टू गो विद यानी सोफी को साथ लेके जाने के लिए। अ पुलिसमैन in the lead, Sophie stood still with his hand in his pocket. वह खड़ा हुआ है, सामने पुलिसमैन भी है, और Sophie stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass button. On the other hand, here the character of Sophie is कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा लेजीनेस है, लेजी है, सुस्त जिसको बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड द माइंड इज वेरी लो, और माइंड भी जो दिमाग भी है थोड़ा सा बराबर नहीं है। Sophie stood still with his hands in his pocket and smiled at the sight of brass buttons. Where's the man that done that? Here कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल या ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी हु सेड टू हिम, किसने किससे कहा। वेयर्स द मैन दैट्स डन दैट, द पुलिसमैन आस्क्ड द क्वेश्चन टू सोफी, सोफी से पुलिसमैन ने सोफी से कहा। वेयर्स द मैन दैट डन दैट, जो काम ये अंजाम दिया है, किसने अंजाम दिया है, किसने ये ग्लास वगैरह फोड़ा है, तो पुलिसमैन पूछता है सोफी से। वेयर्स द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली, एजिटेडली के मीनिंग है इन ए ट्रबल और नर्वसनेस, मायूसी के साथ। उसके नीचे का जो सेंटेंस है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, दिस सेंटेंस अगर पूछा जाता है कि हु सेड टू हिम, किसने किससे कहा, तो ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है डोंट यू थिंक से लेकर विथ इन तक, ये सेंटेंस का सोफी सेड टू द पुलिसमैन, सोफी ने पुलिसमैन से कहा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विथ इट, सेड सोफी विद अ फ्रेंडली वॉइस, बड़ी अच्छी आवाज से कहता है। एज वन ग्रीट्स गुड फॉर्च्यून,
गुड्स फॉर्चून, फॉर्चून की मीनिंग यहाँ पे फेट, फेट किस्मत। और इसको यूज द फ्रेज इन योर ओन वर्ड्स, ओन वर्ड्स के अंदर फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपन यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, द थीफ टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिसमैन कमिंग। सेकंड वन, गुड फॉर्चून दिया हुआ है, तो गुड फॉर्चून का जुमले में इस्तेमाल करेंगे फ्रेज के अंदर। तो एजुकेशन ब्रॉट हिम गुड फॉर्चून। The policeman refused to escape Sophie even as a clue. On the other hand, after some moment, the policeman refused to escape. Refuse करता है, इनकार करता है उसको अरेस्ट करने से, because the character of Sophie is such that उसका कैरेक्टर उसके हुलिये से ऐसा नहीं लगता है कि जैसा इसने ये काम किया होगा। Sophie even as a clue. Men who smash windows do not remain to chat with the police. अगर किसी ने वो कांच को फोड़ा भी होगा तो here men who smash windows do not remain to chat with the police. अब गुनाह करने के बाद में वो पुलिस वाले से बात नहीं करेगा। They take to their heels. अब ये अगर सेंटेंस दिया हुआ है to take their heels और इसको अगर जुमले में इस्तेमाल करने का है तो लिख सकते हैं अपन वहां पर the thief took to his heels when he saw the policeman coming. जो ही पुलिसमैन को आते हुए देखा है तो द थीफ, चोर क्या करता है, द थीफ टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिसमैन कमिंग। द पुलिसमैन सॉ अ मैन हाफ वे डाउन द ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार। विथ ड्रॉन क्लीव ही जॉइंड इन द परस्यूट। सोफी वॉज डिस्कस्ड इन हिज हार्ट, ड्रिफ्टेड अलॉन्ग। ड्रिफ्टेड अलॉन्ग की मीनिंग है वॉक्ड अलॉन्ग, twice unsuccessful. Yani here the line it indicates that Sophie committed different types of crime. कई मर्तबा क्राइम करता है, गुनाह करता है। हर एक जगह पर किसी न किसी होटल में, कभी कोई अच्छी होटल में जाता है, कभी कोई मीडियम होटल में जाता है जहाँ पर लग्जरियस नहीं है, ज्यादा बड़ी होटल नहीं है, ऑर्डिनरी होटल जिसे देता है और उसका मकसद ये है कि पुलिस उसको अरेस्ट करे। सोफी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल। यानी दूसरी मर्तबा दूसरी जगह होटल में गया है लेकिन यहाँ पर भी अनसक्सेसफुल है, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ है। हियर हिज एम इज और हिज एम्बिशन इज टू डू डिफरेंट क्राइम। उसका एम्बिशन है कि मुख्तलिफ जगह पे हर एक होटल्स में जाके कुछ न कुछ क्राइम करता है, गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद में हियर ही इज इंटरेस्टेड इन टू गो टू जेल। टू गो टू जेल, जेल में जाने के लिए इंटरेस्टेड है बिकॉज उसके पास शेल्टर वगैरह, साया वगैरह नहीं है, मकान वगैरह नहीं है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। इट catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soaps and napery thin. Into the place Sophie betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beef steak. Here this paragraph it indicates that he again entered into a restaurant. और एक होटल के अंदर इंटर होता है, रेस्टोरेंट के अंदर। Into this Sophie betook himself without challenge. At a table he sat and consumed beef steak, flapjacks, dog nuts and pie. मुख्तलिफ टाइप के खाने वगैरह ऑर्डर देता है, खा लेता है। And then he told the waiter, उसके बाद में वेटर से कहता है the fact that the minutes coin and himself were total strangers. And here he said to the waiter that he had no money to pay. Now get busy. Get busy की मीनिंग है do what needs to be done. यानी here Sophie entered into another restaurant और एक होटल के अंदर entered होता है। वह खा पीने के बाद में he said to the waiter, वेटर से कहता है कि now get busy.
डू व्हाट नीड्स टू बी डन, जो कुछ आपको करना है वो कीजिए। एंड कॉल अ कोप, और हियर द सूफी ही सेड टू द वेटर, वेटर से कहते हैं टू कॉल टू अ कोप, कोप की मीनिंग है कॉल टू अ पुलिसमैन, पुलिसमैन को भी बुला सकते हैं आप। सेड सूफी, उसके आगे सेंटेंस दिया है एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग,